Welcome students. Welcome to science class. So up to now we have learned about the force and the types of forces and also the effects of force. Now we are coming to the second section of our chapter, that is pressure. Now today we are going to learn about pressure. What is pressure? Then before this you should know what is thrust. Thrust is force applied in a direction perpendicular to a given force. That means thrust एक force ही है. ओके लेकिन वो फोर्स अगर परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस के ऊपर लगाया जाए, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे, यू आर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड से आपका सरफेस एरिया क्या है? ग्राउंड है. ठीक है, ग्राउंड के ऊपर आपके फीट टच कर रहे हैं, दैट इज योर सरफेस एरिया ऑफ बॉडी टचिंग द ग्राउंड but at an angle of 90 degree. So that is the thrust applied by your body on the ground. So I hope it is clear. अब जैसे आप इस फिगर में देखेंगे, सो ये पेड़ काटा जा रहा है, ठीक है, इस एक्स से. सो दिस एक्स इज, ये इसके पीछे वाले आर्म को नहीं देखिए, एक्स का एंगल देखो इस ट्री के साथ. सो इट इज़ जस्ट 90 डिग्री. 90 डिग्री पे जब हमने फोर्स लगाया इस ट्री पे, सो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं. अब यहाँ देखिए आप इस एरोप्लेन में, दिस इज एरोडायनेमिक्स. एरोडायनेमिक्स में आप देखेंगे कि 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर. फर्स्ट इज वेट. वेट के अकॉर्डिंग देखिए, थ्रस्ट इज जस्ट एट 90 डिग्री, है ना. जैसा वेट एरोप्लेन का जो वेट नीचे की तरफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है, उसके साथ ये डायरेक्टली कौन से एंगल पे है? 90 डिग्री के एंगल पे है ये फोर्स, जो सीधा जाने वाली बात है. ठीक है, अब ये सीधा मोशन इसका आगे की तरफ है, फोर्स आगे लग रहा है, वेट बिल्कुल नीचे जा रहा है, दे आर एट 90 डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज thrust. Okay, so these in this way, thrust is a force. Thrust is a force, but which force? It is that force which is applied at 90 degree of the given surface area. कोई भी सरफेस एरिया मतलब कुछ भी टच में है एरिया आपके, ठीक है, तो वो सरफेस एरिया, उसके साथ अगर आप 90 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हो, दैट इज थ्रस्ट. ओके, देन आप वॉल को पुश कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, दैट इज ऑल्सो द थ्रस्ट. ओके, देन नाउ अगर थ्रस्ट एक फोर्स ही है तो ऑब्वियसली फोर्स का यूनिट जो होगा वही थ्रस्ट का यूनिट होगा. दैट्स व्हाई द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन. Newton, it is denoted as N. Okay, now we are coming to pressure. Pressure is defined as force per unit area or thrust per unit area. ठीक है, so pressure is dependent on force and area, thrust और area. इसका अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो फोर्स इज न्यूटन एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो द यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर न्यूटन per meter square. So collectively Newton per meter square is known as Pascal, because this term was discovered by Sir Blaise Pascal. Okay, he was a French scientist. That's why this unit is named after his name. Okay,
Then now see this formula, P is equal to F upon A. That means pressure is depending on only two factors, pressure, force and area. Means कितना force हम लगा रहे हैं और कितने area पे ये force लगा है. Okay. Then pressure increases as surface area decreases. Why so? See the next slide. See, the pressure is directly proportional to force. Pressure force से directly proportional है. P is equal to F upon A. F ऊपर है. That means it is directly proportional to force. Directly proportional, you have done it this term, directly proportional and inversely proportional in maths also. Okay. So these are the same things that अगर force increase होगा तो pressure भी increase होगा. Means अगर हम किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा force लगा रहे हैं तो that means pressure is also increasing, but it is inversely proportional to area. That is, if we are increasing area, the pressure will decrease. If we are decreasing the area, the pressure will increase. So इसके एग्जाम्पल्स अभी आपको बताती हूँ मैं. ठीक है, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा. Many a times we have a news or we see some magical tricks कि a person is lying on the nails, means nails, कील, बहुत सारे कील बिछे हुए हैं. ठीक है, एक किसी भी चीज़ में उसने कील लगा रखे हैं बहुत सारे, और उसके ऊपर वो इंसान जो भी पर्सन है वो लेटा हुआ है. सी, वो हमेशा आपको लेटा हुआ मिलेगा. नो वन विल से दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन द नेल्स. तो अब ध्यान से देखिए क्या होता है. एक और कंडीशन देखिए कि आप सैंड पे खड़े हो, सैंड पे. ठीक है, जैसे बीच के पास सैंड होती है, नॉर्मल सैंड पे आप खड़े हो, या कोई हीप है सैंड की, उस सैंड के ऊपर आप खड़े हो. तो सैंड पे अगर आप खड़े होते हो तो आपके जो पैर हैं उनका काफ़ी डीप इफेक्ट उस सैंड के ऊपर पड़ता है. मीन्स काफ़ी डीपर जाते हैं वो. ठीक है, बट इफ़ यू आर लाइंग ऑन द सैंड, अगर आप सैंड के ऊपर लेटे हुए हो तो आपका इफेक्ट ज़रूर आएगा, but that effect will not be that much deeper as your feet alone was having. Means अब देखिए दोनों टाइम में आपका बॉडी वेट तो सेम है. इफ़ यू आर ऑफ 60 kg देन दैट मीन्स अगर आप फीट पे खड़े हो तो भी 60 kg के हो, और इफ़ यू आर लाइंग डाउन देन ऑल्सो यू आर 60 kg. मीन्स आपका फोर्स तो सेम है. देन वेयर द डिफरेंस इज? डिफरेंस इज विद एरिया. कि जब आप अपने फीट पे खड़े हो तो एरिया कम है. एरिया कम होने की वजह से एज द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है. ओके, सो और जब आप लाई कर रहे हो, मीन्स यू आर लाइंग डाउन ऑन द सैंड, लेटे हुए हो सैंड के ऊपर, तो क्या हो रहा है, आपका जो बॉडी का पूरा सरफेस एरिया है दैट इज इन टच विद द सरफेस. बॉडी का पूरा एरिया, पूरी बैक विद योर लेग्स एंड फीट, पूरा एरिया आपका टच में है सैंड के साथ. तो वो सारा का सारा जो फोर्स है वो उतने सरफेस एरिया पे डिवाइड हो गया ना. 60 kg is divided on that surface area, that bigger surface area of your body. So इस वजह से जब एरिया हमारा बढ़ गया तो प्रेशर कम पड़ा. अब प्रेशर कम पड़ने से उस सैंड के ऊपर आपका इफेक्ट भी कम हुआ. आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं तो उसमें भी आप सेम यही चीज़ देखोगे. देखो इधर, this is the same activity number 6 also there in your book जो हम अभी देखने वाले हैं. so इसमें देखिए एक बॉक्स है. बॉक्स को हम देखो 3 टाइप्स में खड़ा कर सकते हैं. एक को हमने लेंथ वाइज किया और एक को हमने
ब्रेड वाइज किया, लिटाया, ठीक है। तो अब फर्स्ट केस में देखिए, जो सरफेस एरिया ग्राउंड को टच कर रहा है वो कम है ना, और दूसरे में बॉक्स जो है वो पूरा नीचे वाले सरफेस एरिया को लेंथ ब्रेड्थ के हिसाब से चल रहा है, तो पड़ा है, तो उसमें जो एरिया जो सरफेस को टच कर रहा है दैट इज द बिगर एरिया। नाउ फर्स्ट केस में स्मॉलर एरिया है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया क्योंकि वेट तो उतना ही है ना, और सेकेंड केस में एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, सो इसका आप अभी जो एक्टिविटी 6 है उसमें अभी आप देखेंगे इसमें इफेक्ट कैसे पड़ता है क्ले के ऊपर। हमने बॉक्स के नीचे क्ले रख दी है, तो क्ले में हम देखेंगे कि उसके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, सेम एक्टिविटी है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, सी द एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग हाई प्रेशर। हमें हाई प्रेशर की कहाँ ज़रूरत पड़ती है और हाई प्रेशर के लिए हमें कौन सी कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। अगर हाई प्रेशर रखना है तो हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, या अगर हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो हमें एरिया डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट, अ शार्प नाइफ हैज़ अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया ऑन इट्स कटिंग एज। तभी अगर हम चाकू को दूसरी साइड से, अगर हम ब्लंट साइड से कट करने लगते हैं तो वो कटता नहीं है, एंड वी सी दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द नाइफ, एंड देन वी सी दैट, एनालाइज दैट we have the knife in our hand in the wrong position, that means we are cutting it with the blunt side, है ना। सो इस वजह से जब हम शार्प एज वाली तरफ से कोई भी चीज़ कट करने लगते हैं तो वो बहुत इजीली कट हो जाती है और हमें ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ता है, प्रेशर अपने आप ज़्यादा हो जाता है बिकॉज सरफेस एरिया बहुत कम है। ठीक है, इसी तरीके से नेल्स और निडल्स आपको अपनी ड्राइंग से, आपको अपने क्रिएटिव वर्क डिस्प्ले बोर्ड पे जब लगाना होता है, आप थंब से ही उसको प्रेस कर देते हो और वो लग जाता है बहुत इजीली, है ना। सो आप थंब से, थंब जिस एरिया को टच कर रहा है वो ज़्यादा है, ध्यान से सुनो अब इस चीज़ को, थंब जिस सरफेस एरिया को टच कर रहा है, आप थंब पिन की ऊपर वाले सरफेस एरिया को पुश कर रहे हो, वो सरफेस एरिया ज़्यादा है। ओके, और जो डिस्प्ले बोर्ड को जो टच कर रहा है वो एरिया बहुत कम है बिकॉज इट इज़ वेरी शार्प एज्ड, बहुत ज़्यादा शार्प एंड है कि आप उसको हैंड में अगर ज़रा सा आपने पकड़ लिया और फोर्स लगाया तो आपके थंब पे इम्प्रेशन पड़ जाएगा उस निडल का, हो सकता है आपको मतलब थोड़ा सा डैमेज भी पहुंचे। सो वो अगर आप प्रेशर उसके ऊपर वाले पोर्शन पे लगा रहे हो, ठीक है, दैट इज नॉट द शार्प वन, तो उस पे आप लगाओगे तो आपके थंब पे कोई इम्प्रेशन नहीं आएगा बल्कि फोर्स कम लगेगा और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो पिन डिस्प्ले बोर्ड के अंदर चली जाएगी आपके पेपर को टक करके। ठीक है, इसी तरीके से, और आपके थंब के ऊपर कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, बिकॉज सरफेस एरिया वाज लार्ज, सरफेस एरिया ज़्यादा था, इस वजह से एक्सक्यूज मी, सरफेस एरिया ज़्यादा था जिस वजह से आपके थंब के ऊपर प्रेशर कम पड़ा and there is no effect on your thumb. So the nails, needles and the pins have very sharp ends with very small surface areas. When a force is applied to the head of a nail, the pressure will drive its sharp end into a piece of wood easily. Then now see these football boots. अब इन फुटबॉल बूट्स में क्या है बच्चे, नीचे देखो ध्यान से, इसमें स्टड्स लगे हुए हैं,
नाउ स्टड्स क्यों लगे हुए हैं? सो दैट कि ग्राउंड के साथ इसके कांटेक्ट कम हो, क्योंकि इनको रनिंग करनी है, बहुत इफेक्टिवली रनिंग करनी है और फिर किक करना है बहुत अच्छे से। सो किक करने के लिए क्या होगा? द प्रेशर अंडर द स्टड्स इज हाई इनफ फॉर देम टू सिंक इनटू द ग्राउंड। तो उनको प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका ये कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रिपिंग अच्छी करने के लिए हमने स्टड्स लगाए, ताकि इसका ग्राउंड के साथ कांटेक्ट ही कम हो। कांटेक्ट कम हो तो प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा, ज़्यादा पड़ेगा तो ग्रिपिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स वाई द स्टड्स आर देयर इन द फुटबॉल बूट्स और spikes are there in the snow shoes also. Okay, then we are coming on the applications where low pressure is needed. See here, अब वाइल स्कीइंग, स्कीइंग के टाइम पे, स्कीइंग किस पे हम करते हैं? स्नो पे। स्नो इज़ लूज, स्नो के ऊपर हमारे लिए चलना कितना मुश्किल हो जाता है ना। हम नॉर्मल शूज़ के साथ तो चल नहीं सकते, हमें स्नो शूज़ लेने पड़ते हैं, है ना। और स्कीइंग करने के लिए तो हमें उसके ऊपर फिसलना है, सो हमें उसके लिए एरिया अपना लार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। दे हैव अ लार्ज एरिया, सो हमें ये स्लेजेस लगाने पड़ते हैं। ये स्लेजेस लगाएंगे तो हमारा पैर का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा? दैट वी विल नॉट सिंक इन द स्नो, हम स्नो में सिंक नहीं करेंगे। एंड क्या होगा कि प्रेशर कम पड़ेगा, बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया इज बिगर। सरफेस एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में है, प्रेशर कम है, तो हम स्नो के अंदर सिंक नहीं करेंगे। Okay बच्चे, now come to the second figure. The tractor, the bus, the truck, they all are having the double wheels in on their rear side. रियर साइड, एक साइड पे, पीछे वाली साइड पे उनके जो व्हील्स होते हैं वो डबल होते हैं। क्यों? सी द बसेस, ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स, एक तो वो खुद ही इतने हैवी हैं, दूसरा उनके अंदर अगर पैसेंजर्स होंगे और या हैवी लोडिंग की हुई होगी तो उनका वेट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो इसकी वजह से वो ग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, ग्राउंड में सिंक कर सकते हैं, ग्राउंड को डैमेज हो सकता है। सो उस हैवी लोड को बैलेंस करने के लिए क्या होगा? ये दोनों ये जो हमने डबल किए व्हील्स, उन दोनों व्हील्स के ऊपर सारा वेट बैलेंस हो जाएगा और उतना प्रेशर ग्राउंड के ऊपर कम पड़ेगा। सो इफ वी हैव टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड, वी विल हैव टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। नाउ सी you are now see the live example you are having with you, that are your school bags, and then you are having some bags in which you put your sports kits और ट्यूशन बैग्स यू आर हैविंग। सो उसमें बहुत डिफरेंस किस चीज़ का होता है बच्चे? ध्यान से देखोगे, जो स्कूल बैग्स होते हैं ना, उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, और जो ट्यूशन बैग या स्पोर्ट्स किट्स वाले जो आपके स्ट्रैप्स होते हैं वो बिल्कुल एक रस्सी की तरह, बहुत थिन स्ट्रैप्स होते हैं, पतले होते हैं बहुत। तो आपने देखा होगा कि अगर आप उन ट्यूशन बैग्स या स्पोर्ट किट्स वाले बैग्स के अंदर अगर आप ज़्यादा सामान उठा लोगे तो उसका इफ़ेक्ट आपके शोल्डर पे पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और वो आपके शोल्डर पे मार्क भी हो जाएगा और प्रेशर भी ज़्यादा पड़ेगा और आपको पेनफुल भी रहेगा। इसी वजह से, क्योंकि आपको अपने स्कूल बैग में काफ़ी सारी बुक्स और नोटबुक्स और टिफ़िन और ज्योमेट्री बॉक्स और कई कुछ उठाना पड़ता है, दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो द फिजिक्स देयर, that if you are having broad straps, then आपको आपका बैग उठाते हुए आपके शोल्डर पे इफेक्ट कम पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप पॉलीथीन में कुछ भी चीज़, काफ़ी हैवी चीज़, 4 किलो 5 किलो मैंगोज उठाकर अगर आप मार्केट से आ रहे हो या कैसे कहीं पे भी जा रहे हो, देन आप देखेंगे कुछ रास्ता चलने के बाद आपके फिंगर्स के ऊपर, फिंगर्स रेड हो जाएंगी और उनके ऊपर उन उस पॉलीथीन का इफेक्ट पड़ेगा। वही अगर आप किसी ब्रॉड स्ट्रैप्स वाले बैग में अगर आप वो मैंगोज लेकर जाएंगे, सो उतना पेनफुल या उतना इफेक्ट आपकी बॉडी पर, आपके शोल्डर्स पर नहीं पड़ेगा।
ठीक है. सो दीज कंडीशंस, दीज एप्लीकेशन शोज दैट कि अगर आपको प्रेशर कम करना है तो आपको सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा. जो कौन सा सरफेस एरिया? जो कांटेक्ट में है, ठीक है, जहाँ पे प्रेशर लग रहा है. ओके, आई होप दैट इट इज वेरी क्लियर टू यू. नाउ सी द बुक. नाउ here your book is. Have your books with you and underline the important lines in important terms. So pressure, we are having a quick reading, so read with me carefully. We are now familiar with the effects of a force on different objects. Careful observation and analysis reveal that effect of a force also depends on the surface area. कौन सा सरफेस एरिया? जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं. सो ये कॉमन एक्सपीरियंस अभी हमने डिस्कस किया स्कूल बैग का, कि थिन स्ट्रिंग अगर होगी तो वो बहुत मुश्किल होगा उठाना बजाय के ब्रॉड स्ट्रैप्स. देयरफॉर द स्कूल बैग्स आर हैविंग ब्रॉड स्ट्रैप्स. सो दिस इम्प्लाइज दैट इफ द सेम फोर्स, अगर फोर्स को हम सेम रखें और अगर एरिया कम कर दें तो उसके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा. सो दैट मीन्स फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड मीन्स क्या वैल्यू है, कितना फोर्स आप लगा रहे हैं, साथ में कितने एरिया के ऊपर फोर्स लग रहा है. ठीक है. सो ये फोर्स और एरिया दोनों से मिलकर एक टर्म बनती है, दैट इज प्रेशर. सो अंडरलाइन करेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नीट्यूड एंड एरिया. ओके, देन वी आर कमिंग टू द फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज प्रेशर. ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इसलिए कहा बिकॉज चलो अभी ये कंसेप्ट हम ये बाद में करते हैं. देन इट इज द प्रेशर एंड pressure is the force per unit area. Force in a direction perpendicular to a given surface area, we call it as thrust. ठीक है. The thrust acting on a unit area of the surface is called pressure. Means कितने एरिया के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इस चीज को मेजर करने वाली टर्म को हम बोलते हैं pressure. Okay, thrust, again I am repeating that it is the perpendicular force on a given surface. एक surface के ऊपर जो perpendicularly force लग रहा है, that you known as thrust. Then in the second, here it follows that the pressure due to a given force would vary according to the area. मीन्स प्रेशर सेम रखते हुए आपको अगर उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आपको फोर्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट सरफेस एरिया चेंज कीजिए, आपका फोर्स अपने आप चेंज हो जाएगा, प्रेशर अपने आप चेंज हो जाएगा. सरफेस एरिया अगर बढ़ा दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो सरफेस एरिया कम कर दीजिए. ठीक है. अब ये कूली लोग जो होते हैं अपने हेड के ऊपर सामान रखने से पहले एक वाइट क्लॉथ, कपड़े को बहुत अच्छे से टाई करके बांध के गोल सा बड़ा अच्छा सा वो बना लेते हैं जिसके ऊपर वो सामान रखते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया हेड का in contact of that luggage increases, therefore the pressure decreases. Now come to the activity 6. activity 6 में बच्चे क्या करना है आपको? You have to take some molding clay लेनी है. clay लेने से क्या होगा? आपको clay लेनी है, then clay के ऊपर wooden block लेना है. wooden block लेकर क्या करना है? उसके ऊपर बुक रखनी है और wooden block को आपको 3 अलग अलग तरीके से रखना है. मीन्स फर्स्टली you have to put it lengthwise, then breadthwise, then height wise. सो आपको सभी के ऊपर बुक रखनी है. व्हाट द बुक इज इम्प्लाइज? बुक इम्प्लाइज द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन द वुडन ब्लॉक. ओके, वही बुक बार बार हम रख रहे हैं, दैट मीन्स फोर्स तो उसके ऊपर सेम लग रहा है ना, फिर भी क्ले के ऊपर अलग अलग इफेक्ट आ रहा है. अब देखो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्ले ली, उसके ऊपर वुडन ब्लॉक लिया, उसके ऊपर बुक रख दी. बुक अगर 500 ग्राम्स की है तो उतना ही रहेगा फोर्स. उसके बाद आप उस वुडन ब्लॉक को हटा दीजिए और देखिए क्ले में कितना इफेक्ट आया, स्केल से मेजर कर लो. ठीक है. देन सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड केस में आपने उसको ब्रेड्थ वाइज रखा
और ब्रेड वाइज रखने के बाद उसके ऊपर वही बुक रख दी, मीन्स फोर्स हमने उतना ही अप्लाई किया, फिर उसको हटा के देखा कि कितना फोर्स लगा, कितनी डीप ये क्ले के अंदर वुडन ब्लॉक चला गया। ओके, फिर स्केल से मेजर किया। देन बच्चे थर्ड में क्या हुआ कि वुडन ब्लॉक फिर से ले लिया, उसको हाइट वाइज रखा और उसके ऊपर वही बुक रख दी 500 ग्राम्स की। सो अब हमने उसकी डेप्थ नोट डाउन की। तो इन तीनों केसेस में हम देखेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा डेप्थ होगी वो कौन सी होगी, जिसमें सरफेस इन कांटेक्ट सबसे कम है। मीन्स फर्स्ट केस में सबसे कम डीपर जाएगा, सेकंड में कुछ डीपर जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डीपर जाएगा थर्ड एरिया में। सो बच्चे यू हैव टू write this activity in your fair notebook, in your practical notebook, and draw these diagrams also, and I'll send you assignment. You will have to submit this activity back. Okay, so do it just today. Okay, then we are coming to next. These are the applications जो हमने अभी पहले देखी हैं. These are the applications written in your book also. That decrease in pressure, यहाँ पे हमें pressure decrease करना है. So how we can decrease the pressure? Yes, obviously by increasing the surface area. I'm repeating many times कि pressure को decrease करने के लिए surface area increase करना पड़ता है. force अगर हम same ही रखें तो okay, और अगर फोर्स की टर्म्स में कहेंगे तो फोर्स बढ़ाना पड़ता है अगर सरफेस एरिया सेम रखे तो. ओके, बिकॉज pressure is directly proportional to force and inversely proportional to surface area. तो ये हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ हैं बच्चे. बसेस ट्रक्स के डबल व्हील्स क्यों होते हैं? सो दैट उसका पूरा हैवी लोड उसके ऊपर बैलेंस हो जाए और ग्राउंड को इफेक्ट कम करे. नाउ वेरी हाई राइज बिल्डिंग्स, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी आपने देखा होगा बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स होती है ना, जिनमें इवन की 50 ग्राउंड्स होते हैं ना. देन डैम्स जो बनाते हैं ना, डैम्स में इतना हैवी लोड किसका पड़ता है? वाटर का पड़ता है. तो उसके लिए इतना प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा, तो हमें प्रेशर कम करना पड़ता है. प्रेशर कम करने के लिए हम क्या करेंगे? उसका बेस वाइडन कर देंगे. बेस वाइडन करना मीन सरफेस एरिया ज़्यादा होना. सरफेस एरिया ज़्यादा किया तो प्रेशर कम हो गया. सी, अब आपने अपने आर्मी टैंक्स देखे हैं, तो आर्मी टैंक्स देखकर आपने क्या देखा कि उनके जो ट्रैक्स होते हैं वो कैटरपिलर ट्रैक्स होते हैं. और कैटरपिलर ट्रैक्स क्यों होते हैं? सो दैट क्योंकि उसको पानी पे भी चलना है. और किस पे चलना है? पानी पे और सैंड पे, सॉइल पे, क्योंकि वहाँ पे बैरन लैंड्स होती है ना, उन पे चलने के लिए उनको व्हील्स का प्रेशर उनको धसे ना उसके अंदर, तो उसके लिए उनको कैटरपिलर ट्रैक्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उससे कैटरपिलर ट्रैक से सरफेस एरिया बढ़ जाता है. और रेलवे ट्रैक, नाउ अब रेलवे ट्रैक पे आएंगे. रेलवे ट्रैक आपने देखा कि 2 रोड्स होती हैं, है ना, और कुछ तो होता नहीं है. नहीं होता ना? होता है, ध्यान से देखना. उसके अंदर वुडन प्लैंक्स लगे हुए होते हैं, वुडन बिल्कुल एक जैसे वुड के पीसेस लगे होते हैं. क्यों? क्योंकि अगर बेटा इतनी हैवी ट्रेन इतने ज़्यादा स्पीड के साथ उस रोड के ऊपर से चल के जाएगी तो वो रोड तो ग्राउंड के अंदर धंस जाएगी ना. सो उसका प्रेशर कम करने के लिए उसके साथ उसका फोर्स जो है वो बैलेंस कर लिया गया. बैलेंस कैसे किया गया? उसके बीच में वुडन आयरन स्लिपर्स लगा दिए गए. ठीक है. देन दीज 2 कंडीशंस ये हमने पहले भी किया कि शार्प नाइफ जो होता है उसको प्रेशर हमें बढ़ाना होता है, इस वजह से शार्पनेस ज़्यादा होती है. और नेल पिन स्पाइक्स ये सारे शार्प एंडेड इसलिए होते हैं ताकि हमारा कम प्रेशर लगे, कम फोर्स लगे और इजीली वो जिस काम के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो अंदर डिस्प्ले बोर्ड में चला जाए या वॉल में चला जाए, जैसे भी आप यूज़ करें वो हो जाए. ओके बच्चे, सो लेट अस टेस्ट आवरसेल्फ. फर्स्ट केस में देखिए कि इन चारों पोजीशंस में से बच्चा कहाँ पे लीस्ट प्रेशर लगा रहा है ग्राउंड में, ए, बी, सी या डी. सो इट्स वेयर द सरफेस एरिया इज लार्जर, दैट इज बी. ओके, नाउ अगर हम ग्रेटर प्रेशर की बात करें तो दैट्स देयर इन सी. देन a cockroach and a spider, they both are crawling on a desert.
ठीक है. So both the insects have same weight and same size legs. Now looking at the number of legs, which insect will leave deeper footprints? So ध्यान से देखो, जितनी ज़्यादा legs उतना ज़्यादा surface area, जितनी कम legs उतना कम सरफेस एरिया. कम सरफेस एरिया मतलब प्रेशर ज़्यादा. सो किसकी किसकी लेग्स कम? कॉकरोच की. कॉकरोच की कम तो उसका सरफेस एरिया कम. सरफेस एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा. प्रेशर ज़्यादा, दैट मीन्स दे विल लीव द डीपर फुटप्रिंट्स. कौन? कॉकरोच. So I hope you understood the whole lecture and you have enjoyed that also. So learn it carefully, read it very carefully and mark all the important points बच्चे. ठीक है, all the very best. Thank you.